Welcome you all on the NIUS Senior Secondary session. Today's topic is definite integrals. I, Manish Kumar Sharma, PGT Maths from KV Bulandshahr, Agra region. Today we will discuss a very important topic, definite integrals. In last class, we have discussed indefinite integrals. Today we are going to discuss definite integrals. डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो हमारे पास चीजें हैं, इंडेफिनिट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं. वी हैव द सम एप्लीकेशंस एज वेल इज दिस टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच वी हैव टू कवर इन टुडेज क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. दिस इज द फर्स्ट थिंग. व्हाटएवर टॉपिक वी स्टार्ट, पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन देना होता है कि क्या टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं. उसके बाद आता है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम. एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है और जिसके बारे में एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, उसे आज हम डिस्कस भी करने जाएंगे कि क्या है ये डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम. उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस क्या होता है इन प्रॉपर्टीज का, उनके बारे में क्या होता है, ये सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. उसके बाद एज यूजुअल जैसा हम हर क्लास में करते हैं, वी विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, some special questions we will discuss, जिसे होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे और बहुत यूजफुल होते हैं आपके कॉम्पिटिशन्स में, अलग अलग एग्जाम्स में. चलिए, तो सबसे पहले तो बिफोर टू स्टार्ट अवर टॉपिक, थोड़ा प्री नॉलेज पर हम आ जाते हैं. प्री नॉलेज स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा है, अपने आप अलजेब्रा में क्लास 11th में भी पढ़ के आए थे कि यू नो अबाउट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो in place of taking n, we are taking n minus 1. So it's very simple. It's n into n minus 1 upon 2 is the sum of the first n natural number. In the same manner, if you take the first sum of first n natural number, it's simply you replace just n by n plus 1. So these are the three formulas which we discussed in class 11th as well in the topic arithmetic progression sequence and series. Here the sum of the first n terms, n minus 1 terms. Second one is the sum of the square of the first n minus 1 terms, and third one is the cube, sum of the cube of the first n minus 1 terms. और यहाँ पर लर्न करने का भी बड़ा सिंपल तरीका होता था बच्चों. आप देखा है कि n into n minus 1 upon 2 is the sum of first n minus 1 and cube में उसका केवल होल स्क्वायर हो जाता था. तो ये एक प्री नॉलेज है जो थोड़ा इसमें टॉपिक में आपको याद रखनी होगी, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. चलिए, तो जो टॉपिक है हमारा उसको एक बार देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. What are the parts in this topic? As you know about the indefinite integrals, earlier in the class we discussed about the indefinite integrals. We have a sign of integral, we have the integrand f, and we have the variable. And this time in the definite integral, we introduce the two limits. One is called the lower limits and other is called the upper limits. These two are the include and which make these things, these topic into convert into definite integral. Earlier it was indefinite integral. So you can see here integration sign is there. Lower limit a, integration की lower limit यहाँ पर a है, and upper limit of integration is b. The function is integrand. जो आप पढ़ते थे, जिस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, x is the variable of integration. इसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, this is the variable of integration. These are the things we will discuss in today's class. Yes, definite integral. Our definite integral is denoted by a से b f x dx, where a is called the lower limit and b is called the upper limit. ये हमने पढ़ा है. The definite integral is introduced either as the limit of a sum or it has an antiderivative f in the interval. Students, antiderivative का concept हमने पहले भी पढ़ा था और हमने लास्ट समय बताया था the collection of the all antiderivatives. It is called the integration. It is called the indefinite integral. But this time we are taking the definite integral between the limits a and b. So we say it is the difference between value of f in the upper limit minus lower limit. So we will simply say it is fb minus fa. fb minus fa, where f you know about what? It is the antiderivative. आगे बढ़ते हैं. These are the very two important theorems of integral calculus. आपको जानना चाहिए कि ये दो इंटीग्रल कैलकुलस की थ्योरम है. बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रल की, तो डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है समहाउ इट इज द एरिया ओनली. अगर आपको कोई भी कर्व है और उसका किसी लिमिट्स के बीच में डेफिनेट इंटीग्रल पता करना है, तो इट मींस इट इज द एरिया ऑफ दैट कर्व बिटवीन द दीस टू लिमिट्स.
So here you can easily understand कि suppose fx is a curve and you want to find the area of the curve between the limits a and b, then it is denoted as a is equal to a से b fx dx. This is the area of that particular part. You can see in the yellow region. Yes, of course, is a very important theorem, first fundamental theorem of integral calculus. It's a very important. Let f be a continuous function. Continuous function बच्चों हम बात ही कर रहे हैं because अगर ये continuous ही नहीं होगा और कहीं break हो जाएगा तो we cannot connect the area. We have to find the area in the separate manner. So we need to take it as a continuous function. Suppose you are taking f is a continuous function in a closed interval ab and let ax be the area functions. You know about the area function, then a dash x is equal to fx. A dash की बात कर रहे हैं यहाँ पर. You know about the dash. जब हम बात कर रहे थे in your indefinite integral, we say the capital F dash x is equal to small fx. So then fx is called the what? It is called the primitive. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं area function. Where ax को हमने डिफाइन किया है a to x fx dx. तो a dash x जो हमारे पास यहाँ पर fx के बराबर है, it is called the first fundamental theorem of integral calculus. Now we come on the second fundamental theorem जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था. Let f be a continuous function or on the closed interval ab, then be antiderivative f. तो हम बात करेंगे यहाँ पर, आप देख लीजिए जरा थोड़ा सा इसको. यस स्टूडेंट्स, तो हम बता रहे थे जो सेकंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है वो क्या है हमारे पास, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास सेकंड थ्योरम की बात है. हमने कहा कि अगर a से b fx dx अगर हम बात करें और इसमें हम बात करें कि f यहाँ पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल ab, तो दिस इज इक्वल टू fb माइनस fa. fb माइनस fa. यहाँ पर f के बारे में एक बात बताई थी कि f यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव है. क्या है यहाँ पर? एंटी डेरिवेटिव. ये है हमारे पास. तो सबसे पहले एक इंटीग्रल करने जाते थे तो उसमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम बच्चे को आती थी कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट तो यूज नहीं कर रहे. बिकॉज इंडेफिनेट इंटीग्रल की जब बात आती थी तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास एक थी कि एवरी टाइम हम उसको सी यूज कर रहे थे. तो अब यहाँ पर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, सी यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसके लिए सपोज हम बात कर सकते हैं कि सपोज हमने कहा कि भाई fx प्लस सी जो है हमारे पास, ये इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स, कलेक्शन ऑफ ऑल प्रिमिटिव्स. तो आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल में बच्चों पढ़ा था कि इंडेफिनिट इंटीग्रल fx dx जो होता था वो हमारे पास होता था fx प्लस सी. अगर हम बात करें कि fx प्लस सी कलेक्शन ऑफ ऑल प्रिमिटिव्स है, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि अब इसमें c का यूज हम डेफिनेट इंटीग्रल में क्यों नहीं कर रहे हैं. तो एक और मेथड है कि इसको आप ऐसे करके भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम यहाँ a से b fx dx ले रहे हैं तो क्या होगा. देखिए यहाँ पर इस तरीके से आया कि fx प्लस c इट इज a टू b. रूल बताया कि इट इज fb माइनस fa. फर्स्ट यू रिप्लेस अपर लिमिट इन द इंटीग्रेशन माइनस लोअर लिमिट. जैसे हमने पढ़ा कि इट इज fb माइनस fa. तो पहले आप अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा. देखिए fb प्लस c माइनस fa प्लस सी. तो फाइनली आपको आप देखेंगे c से c कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया fb माइनस fa. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों की डेफिनेट इंटीग्रल है, बिकॉज इंडेफिनिट इंटीग्रल में c की प्रेजेंस उसको इंडेफिनिट बना देती थी कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास. लेकिन चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो इट मस्ट बी अ फिक्स वैल्यू. सो इट इज अ फिक्स वैल्यू fb माइनस fa. तो यहाँ से आप देख भी सकते हो कि c यहाँ से इजीली कैंसिल हो रहा है. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था डेफिनेट इंटीग्रल का. चलिए अब इसमें हम आते हैं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं. जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बात किया था कि सबसे पहले हमारे पास इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट एज ए सम, जो हमने अभी बताया भी था आपको उसमें. तो इसको हम देख लेते हैं कि लिमिट एज ए सम हमारे पास क्या है. देखिए इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. क्या स्टोरी थी इसके पीछे? देखिए बच्चों कि जैसे सपोज हमारे पास कोई कर्व है और वो इस फॉर्म में है, ये y इक्वल टू क्या है fx, इस फॉर्मेट में कर्व है और आपसे कहा गया कि भाई आप x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के बीच में इसका एरिया फाइंड कर लीजिए. ये जो एरिया हमारे पास है इसको फाइंड करके बताइए क्या आएगा. देखिए बहुत पुराने समय की बात है, कहा जाता है एक बड़ी अच्छी स्टोरी इसके ऊपर है कि बहुत पुराने समय की बात है कि जब इस टाइप की कर्व होती थी, सपोज सम पीपल हैव अ लैंड
इन द जस्ट नियर ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे अगर किसी की लैंड है तो लैंड कभी भी एक एग्जैक्ट शेप में नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो लैंड की जो सारी एजेस हैं वो कोई एक पॉलीगन की शेप में होंगी। तो अब इसका एरिया निकालना बड़ा मुश्किल काम होता था। तो फिर कुछ लोग क्या करते थे जो थोड़े इंटेलिजेंट थे कि इसका एरिया तो निकाल नहीं सकते थे, उसकी तरह एक पूरा रेक्टेंगल बना लेते थे और रेक्टेंगल बना के इसका एरिया निकाल लेते थे। तो रेक्टेंगल बना के एरिया निकालने में क्या हुआ कि ये जो पोर्शन था ये एक रिवर थी, लैंड खाली ये थी जो हमारा बाउंडेड, ये जो एरिया दिख रहा है ये रिवर है, ये पानी है। लेकिन वो कैलकुलेट करने के लिए इसको कॉन्सेप्ट को फॉलो करते कि भाई अब आपके पास एक फिगर आ गई, आइदर इट इज रेक्टेंगल और स्क्वायर या पॉलीगन शेप में आ गई, इसका एरिया आप निकाल लीजिए। तो किसी भी पर्सन को इतना स्पेस मिल रहा था लेकिन उसको पेड करना था इतना अमाउंट। तो ये बड़ा लोगों के लिए बड़ा अलग अलग लगा कि भाई इतना अमाउंट हम क्यों फेस करें। फिर धीरे धीरे कुछ इंटेलिजेंट लोग आने लगे और फिर इंटेलिजेंट लोगों ने कुछ इस तरीके से किया, इस तरीके से उसको कवर कर दिया यहाँ से, और वो बोले कि हम इसका एरिया का अमाउंट देंगे और ये जो पोर्शन था ये वाला ये अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको जिसकी लैंड होगी, क्योंकि हम कैलकुलेट करने का ये मेथड फॉलो करेंगे। तो ऐसा करने से तो काफी डिस्प्यूट होने लगे कि भाई ऐसा कैसे करें कि अब किस तरीके से एग्जैक्ट एरिया फाइंड करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई इस तरीके से रीमान एक वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, वाज ए वेरी ग्रेट साइंटिस्ट मैथमेटिशियन रीमान, बोलते हैं रीमान ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रीमान इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट दिया और वो बहुत यूजफुल हुआ इसके लिए। देखिए क्या कॉन्सेप्ट हुआ, सपोज यही हमारे पास एरिया था किसी का, इस फॉर्म में एरिया था ये x इक्वल टू a से b, और वही प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे कि भाई अगर हम यहाँ से रेक्टेंगल बनाएं तो ये एरिया एक्स्ट्रा जाएगा, और यहाँ से रेक्टेंगल बनाएं तो ये एरिया के बिना आपको पे करना होगा। तो उन्होंने क्या करा कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ से। ये अब जब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक रेक्टेंगल आप यहाँ से बनाएंगे और एक रेक्टेंगल आप यहाँ से बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि अब आपको केवल ये एरिया और ये एरिया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। पहले आपको कहा ये पूरा एरिया एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था, लेकिन इसके पार्टीशन करने से ये आपको और कम पे करना पड़ रहा है। तो उसका मतलब इसको पार्टीशन करने से बहुत फायदा हुआ। तो ठीक है, फिर इसके और पार्टीशन कर दिए हमने, यहाँ भी और पार्टीशन कर दिए। अब आप देखोगे पार्टीशन करोगे तो यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया तो केवल ये एरिया देना है, और यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया तो ये एरिया। यानी एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आप इसके पार्टीशन करते चले जाएंगे, देन इट इज वेरी हेल्पफुल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो आप इसके पार्टीशन यहाँ से हमने ऐसे करके इसके छोटे छोटे पार्टीशन हमने इसको करते जाएंगे। ये इसके छोटे छोटे से पार्टीशन हमने कर लिए, और सपोज हमने यहाँ पर सारे पार्टीशंस की जो विड्थ है, विड्थ वो h ले ली यहाँ पर h। तो देख रहे हैं आप एवरी टाइम पर ये छोटे छोटे से रेक्टेंगल आ गए, छोटे से। अब जितना आप इनको स्मॉल कर दो जाओगे उतना ही क्या होगा, रेक्टेंगल की शेप एग्जैक्ट मिलने लगेगी। तो अब आप देखें कि यहाँ पर सपोज हमने इसको n स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लिया, n ब्लॉक्स बना लिए। यहाँ पर कितने बना लिए, n यहाँ पर ये। और हम इस एक रेक्टेंगल का एरिया अगर हम देखें तो क्या होगा इस रेक्टेंगल का एरिया। जैसे हमारे पास पता था कि ये y इक्वल टू fx फंक्शन था, फिर इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास देखें तो क्या होगा, हमने इसकी विड्थ को h माना है और ये हमने कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस a है। कितनी डिस्टेंस है ये, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास देखिए क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, fa, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी ये लेंथ fa हो गई, ये लेंथ हो गया h। तो आप इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, आप अगर आप देखें तो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो आपको पता है h इंटू fa। किसका एरिया, पहली स्ट्रिप्स का एरिया, h इंटू fa। तो ये हमारे पास पहले रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब अगर हम दूसरे रेक्टेंगल का एरिया निकालें इसका, तो आप देखेंगे ये डिस्टेंस a थी, ये h, तो ये a प्लस h हो गई। तो इसका हो जाएगा h इंटू एफ ए प्लस एच, क्योंकि अब हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट जो इस वाले पॉइंट के लिए आएंगे वो एफ ए प्लस एच फॉर्म में आ जाएंगे। अब हम जब तीसरे का लेंगे तो एफ ए प्लस टू एच आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एच एफ ए प्लस टू एच। तो हमने क्या किया, ऐसे करते करते एन स्ट्रिप्स ले ली। कितनी स्ट्रिप्स लिए हैं यहाँ पर हमने, एन स्ट्रिप्स हमने लिए यहाँ पर। तो अगर हम एन स्ट्रिप की बात करेंगे तो जब हम इसको लास्ट टर्म पे ले जाएंगे तो क्या आएगा, देखिए h इंटू एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो बेसिकली ये हमारे टोटल एरिया आया, ये एरिया पहली स्ट्रिप का, ये एरिया दूसरी का, ऐसे करते करते n स्ट्रिप्स आ गई।
तो बच्चों लेकिन अभी भी यहाँ पर एक बात आई कि एरिया अगर आप देखोगे इस स्ट्रिप का निकालोगे तो अभी हमारे पास ये एरिया, ऐसे इसका निकालोगे, ऐसे इसका निकालोगे तो तब भी कुछ एरिया और एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब एरर बहुत ज्यादा है। तो अगर आवर वर्क इज टू जस्ट मिनिमाइज दिस एरर, हाउ कैन वी मिनिमाइज दिस एरर? तो आप समझ सकते हैं व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट इंक्रीज द स्ट्रिप्स, सपोज वी इंक्रीज ए स्ट्रिप, सपोज वी इंक्रीज ए स्ट्रिप, सपोज वी इंक्रीज ए, और अब हमें पूरी स्ट्रिप्स को, अगर हम इसको पूरी को इतनी स्ट्रिप्स बढ़ा दें कि एवरी स्ट्रिप्स इज जस्ट लाइक एज ए लाइन, हर स्ट्रिप्स एक लाइन बन जाए, तो क्या होगा अगर हर स्ट्रिप्स एक लाइन बन जाए? तो इसको हम इस तरीके से बच्चों पढ़ेंगे क्या, कि जो रीमान इंटीग्रल के नाम से एक हमारे पास आया, कि अगर हमारे पास ये जो पोर्शन था ये, और अगर आप x इज इक्वल टू b के बीच y इक्वल टू fx का एरिया निकालना चाह रहे हैं, एरिया, तो आप इसको इस तरीके से नोट करेंगे, a से b fx dx इज इक्वल टू, हाँ हमने कहा कि हमने इस पूरे इंटरवल में n स्टेप्स बनाई थी, और अब इन n स्टेप्स की बात कर रहे हैं, हम उसको इनफाइनाइट पे ले जा रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, और आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं बच्चों कि ये जो हमारे पास टोटल लेंथ है वो b माइनस ए है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, b माइनस ए, और हमने यहाँ पर n स्ट्रिप बनाई है, तो हर एक स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी हमारे पास, विड्थ b माइनस ए अपॉन एच, इसी को आप h बोल रहे हैं हमारे पास, ये h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन। तो अब अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो मैंने बताया इसको इनफाइनाइट स्ट्रिप्स पे अगर ले जाते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h, आप कॉमन ले लीजिए सब में से, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डैश 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये तो बेसिकली हमने क्या करा कि स्ट्रिप्स को इतना ज्यादा कर दिया कि जो हमारे पास एरिया की, जो हमारे पास जो रेक्टेंगल्स छोटे छोटे एरिया कवर कर रहे थे वो एक लाइन की फॉर्म में बन गए। तो बच्चों ये रीमान ने इसको एक कॉन्सेप्ट दिया था, और एक ये स्टोरी भी बताई जाती थी कि उन्होंने इस फेमस प्रॉब्लम को आप सॉल्व किया। अब जरा बैक टू हम स्क्रीन आ रहे हैं, वहां पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जाते हैं इस टॉपिक से कि हमारे पास क्या है ऐसा। देखिए इसमें बच्चों एक चीज और समझ लीजिए आप, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, जैसा कि मैंने बताया था h इक्वल टू था b माइनस ए अपॉन एन, जब आप n को 0 पर ले जाएंगे देन n गोज टू इनफाइनाइट, व्हेन यू टेक n गोज टू इनफाइनाइट इट इज सिमिलरली h गोज टू 0। तो जो फॉर्मूला है हमारा वो दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, आइदर यू टेक लिमिट s टेंड्स टू 0 और यू टेक लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अभी हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे, वी विल यूज द बोथ टर्म्स, आइदर s टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। ये दिखाया रखा है यहाँ पर किस तरीके से ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बने थे, और जिनको हमने इनफाइनाइट पर ले जाने पर उसका एरिया हमारे पास क्या हो गया। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूले की फॉर्म बन गई कि a से b fx dx जो हम बात कर रहे थे, दिस इज s टेंड्स टू 0 h fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h डैश 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 fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर h इट इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n। तो नीचे यहाँ पर ये भी दिखाया गया है, समटाइम्स कुछ लोग इसे ऐसा भी पढ़ते हैं कि वो n माइनस 1 h नहीं n h पर ले जाते हैं, तो वो a प्लस h से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स उतनी ही आ रही हैं, आइदर आप यहाँ से स्टार्ट करें या fa से स्टार्ट करें, बोथ हैव द सेम मीनिंग। चलिए अब हम आते हैं कुछ अपनी प्रॉब्लम्स पर आते हैं और उसको देखते हैं कि इस टॉपिक का किस तरीके से हमारे पास यूज आता था। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एवोल्यूट 0 से 2 x प्लस 3 द लिमिट ऑफ द सम। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास कि आपको लिमिट ऑफ द सम से आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो लिमिट ऑफ द सम में आपके पास सबसे पहले हमारे पास सारी चीजों को स्टूडेंट्स फाइंड करना है कि यू हैव द फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 3, you have the lower limit a equal to 0, you have the upper limit b equal to 2, and h is what, b minus a upon n. So you can simply find out the value of h, 2 minus 0 upon n. ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ओके अब अगर हम बात करें कि अब फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो वी हैव द सिंपल फॉर्मूला fa plus h and लास्ट में fa plus n minus 1 into h. Here a equal to 0, so replace a by 0, then you get f0 plus fh plus f2h plus dash 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 f plus fn minus 1 into h. देखिए now you replace the value of f in the function.
You have the function fx is equal to x plus 3. So you have 0 plus 3, h plus 3, 2h plus 3 or n minus 1 h plus 3. Students, I have already said we have the n brackets. We have the n brackets and you can see there are three present in the each n terms. So when you add 3 up to n times, then what you will get 3n. Now from the rest of the terms, take h common. When you take h common from the rest of the term, then you get h1 plus 2 plus 3 up to n minus 1. And student, I think you have remembered कि before to start the class, हमने कहा था कि what is the pre-knowledge of this topic. तो pre-knowledge of this topic की बात हमारे पास यही थी students कि pre-knowledge में हम जो बात कर रहे थे कि you have the formula 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1. आपके पास इसका फॉर्मूला होना चाहिए n into n minus 1 upon 2. So now the terms to simplify these terms. So then how you will be simplifying? So you have the limit s tends to 0. अगर आप पूरे क्वेश्चन को h को n में कन्वर्ट करते हैं, then you have to take the limit n tends to infinite. And if you convert whole question into h, then you have to take the limit s tends to 0. तो आप देख सकते हैं जो थर्ड फोर्थ स्टेप है हमारा, उसमें हमने हर टाइप को h को n में कन्वर्ट कर लिया है. एंड आपको याद होगा व्हाट द वैल्यू ऑफ h? It is 2 by n. So you just replace h is equal to 2 by n and take n common. So what is the term? It is 6 plus 2, 1 minus 1 by n. Now apply the limits. N goes to infinite. When n goes to infinite, 1 upon n goes to 0. So you simplify 6 plus 2, 1 minus 0. Now the value is 8. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स 8 आ गया है. अब हम ये देखने चाह रहे हैं कि क्या हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं है. देयर इज एनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है, दे फेस द कैलकुलेशन मिस्टेक्स. इसलिए बताया कि कैलकुलेशंस को अगर आपको अवॉइड करना है मिस्टेक्स को, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं आपको, वो आप ध्यान रखना है. यस, वी बैक टू स्क्रीन. यस, तो हमारे पास क्वेश्चन था स्टूडेंट 0 से 2 और x प्लस 3 fx dx, और हमारे पास लिमिट एज ए सम से हमने आंसर इसका निकाला. चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ही डायरेक्ट क्या आ रहा है. अगर हम देखें, ट्राई करके देखें तो डायरेक्ट आंसर किस फॉर्म में क्या आएगा. चलिए, x का इंटीग्रेशन जैसे हमने पढ़ा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x, लिमिट है 0 से 2. आज हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी में आपको बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल्स अगर आपको फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए. पहले अपर लिमिट पुट करिए माइनस लोअर लिमिट पुट करिए. तो देखिए अपर लिमिट पुट करें तो 4 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करिए x में, 0 पुट करा, 0 प्लस 0. तो आप देख लीजिए आंसर कितना आया, 8 आया. और अभी आपने याद होगा, अभी आपने जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका आंसर भी हमारे पास 8 ही आया था. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रही कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यूज हैं वो आपको क्या करनी है, एक ऑर्डर में लेनी है. जैसे सपोज अब हम एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं. सपोज उसने कहा है 0 से 3 x स्क्वायर dx, 0 से 3 x square dx, and you have to find the value of this integral by using limit as a sum. देखिए इसमें कॉमन मिस्टेक होती है कि sometimes you have to find by limit as a sum, and डायरेक्ट फॉर्मूले से तो आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं डायरेक्ट से निकालना चाहूं तो इसका आंसर क्या होगा. इट इज x क्यूब अपॉन 3, 0 से 3. क्या आंसर आया देखिए, 3 की क्यूब अपॉन 3 माइनस 0. आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर आ गया 9. अब हम देखते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला था उस पर कैसे अप्लाई करते हैं, एंड व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द, जो हमारे पास एक पैटर्न है उसको कैसे लेके चलना है. तो सबसे पहले देख लीजिए स्टूडेंट्स, पैटर्न की हम बात करें तो यहां पर हमारे पास a 0 है, b हमारे पास 3 है, और fx जो हमारे पास है वो x स्क्वायर है, और जो हमारे पास फॉर्मूला होता था h, इट इज b माइनस a अपॉन n. तो आप देख सकते हैं h की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 अपॉन n.
अब आप अपने फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कराएं। आप देख सकते थे कि आपको एफ ए की रिक्वायरमेंट होती थी इंटू एच, तो उसको भी देख सकते हैं आप, एफ एन माइनस वन इंटू एच अगर हमारे पास बात करें तो इट इज एन माइनस वन एच का होल स्क्वायर। ये हमने सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली। हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं 0 से 3 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एच। फॉर्मूला आपको याद है, ए यहाँ पर 0 है तो एफ जीरो प्लस एच एफ जीरो प्लस 2h प्लस डैश 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 एफ जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखो क्या आंसर हमारे पास आया, लिमिट एस टेंस टू 0 एच। अब देखिए अब अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास, एफ जीरो आपको पता था स्टूडेंट्स, एफ जीरो हमारे पास क्या है, 0 था, ये हमारे पास एच स्क्वायर था, ये 2h स्क्वायर था, ये 3h स्क्वायर प्लस डैश 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 लास्ट में आपको पता है इट इज n माइनस वन एच का स्क्वायर। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, लिमिट s टेंस टू 0 h और सबसे हमारे पास h स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, इट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और ये आया हमारे पास लास्ट में n माइनस वन का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट एक चीज आपको इस पर ध्यान नहीं होगी, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ ए पॉलिनोमियल तो आपको पता भी चल जाएगा कि सपोज देयर इज ए मिस्टेक देन यू कैन चेक। ये हो गया एच क्यूब और ये फॉर्मूला आज हमने पढ़ाई था इसका n इंटू एन माइनस वन 2n माइनस वन अपॉन 6। ये नाउ आइदर यू कन्वर्ट टोटल टर्म इंटू h और टोटल टर्म इंटू n, किसी भी एक में आपको कन्वर्ट करना है, इट नॉट बी इन बोथ n एंड h। इन द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स जहां पर पॉलिनोमियल फॉर्म में आ रही है वहां पर यू नीड टू टेक n टेंस टू इनफाइनाइट। आपको पता था देखिए स्टूडेंट्स, h हमारे पास क्या निकल के आया है, h आया था 3/n। नाउ यू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू टोटल क्वेश्चंस को हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि पूरे क्वेश्चन को n की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आया, लिमिट s टेंस टू, यहां पर एक चीज और देख लीजिए, व्हेन h गोस टू 0, अगर h 0 होगा तो क्या होगा, व्हेन h गोस टू 0 n गोस टू इनफाइनाइट, इसलिए लिमिट टर्म्स ले रहे हैं हम n गोस टू इनफाइनाइट और h की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/n, इट इज 3/n की होल क्यूब। यहाँ पर n इंटू एन माइनस वन 2n माइनस वन अपॉन 6। नाउ टेक n कॉमन फ्रॉम हियर एंड हियर, पूरे में से n कॉमन ले लीजिए तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, इट इज 27 अपॉन n क्यूब, इट इज n क्यूब, n यहां से कॉमन लिया n यहां से, तो व्हाट इज लेफ्ट 1 माइनस 1 अपॉन n 2 माइनस 1 अपॉन n, दिस इज, ये हमारे पास बचा अपॉन 6। नाउ टेक n क्यू एंड n क्यू कैंसिल। अब नाउ यू अप्लाई द लिमिट्स, तो लिमिट्स के बारे में बताया था कि व्हेन n गोस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n गोस टू 0, जब n इनफाइनाइट पर जाएगा तो 1 अपॉन n किस पर अप्रोच करेगा, 0 पर अप्रोच करेगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 27 1 माइनस 0 2 माइनस 0 अपॉन 6। और आप सॉल्व करके देख लीजिए क्या बचा, ये 9। और याद होगा आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें स्टार्टिंग में निकाला था तो वो हमारे पास 9 आया था। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स के। बेसिकली अगर हम लिमिट एज ए सम की बात करें तो वी हैव जस्ट टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द टॉपिक लिमिट एज ए सम। वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज लाइक पॉलिनोमियल क्वेश्चंस एंड अदर इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर्म। बच्चों एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इट्स अगेन वेरी यूजफुल क्वेश्चन। उसके लिए जस्ट वी आर शेयरिंग आवर स्क्रीन, इस पर आप जरा देखिए। Yes, it is -1 to 1 e raised to power 2x dx as the limit of a sum। उसने कहा है कि इस क्वेश्चन को आप लिमिट ऑफ द सम की फॉर्म में फाइंड करते हैं। तो अब जरा देख लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरह, हियर व्हाट इज a is -1, b is 1 and fx is equal to e की पावर 2x। So first of all find h, that is b minus a upon n
So h is 2 by n. Now use the formula f minus 1, f minus 1 plus h, f minus 1 plus 2h and so on. तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास. तो अब आपका काम क्या है कि you have to just use this formula. You have to find the value of f minus 1, f minus 1 plus h, f minus 1 plus 2h by putting the value in the given function. चलिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन बहुत लार्ज होता है तो उसको हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज भी किया था, अदरवाइज डायरेक्ट भी यूज करते हैं. नाउ यू अप्लाई f minus 1, it is e raised to power minus 2, again e minus 2 plus 2h, e minus 2 plus 4h. Students, you can easily can see it's e raised to power minus 2 हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया. अब जो रेस्ट ऑफ टर्म्स हैं, अगर आप उसमें देखेंगे कि स्टेप यहाँ पर तो डायरेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ई की पावर 2h प्लस ई की पावर 2h होल स्क्वायर प्लस ई की पावर 2h की पावर n माइनस 1. ये हमारे पास यहाँ पर बचा. और अगर हम इसको जीपी के कॉन्सेप्ट से यूज करें तो यू नो द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ ए जीपी, इट इज a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो यहाँ पर यही फॉर्मूला बनना था हमारे पास कि यहाँ पर r तो हमारे पास हो गया e रेज टू पावर 2h और a हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी व्हेन यू टेक a e की पावर माइनस 2 कॉमन, अगर कॉमन भी ले या ना ले. अब यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन यू मल्टीप्लाई पावर इनटू पावर, e की पावर 2nh माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1. अब एक फॉर्मूला था जो लिमिट्स में हमने पढ़ा था कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते थे तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 होता है. तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन h में ही फॉर्म में कन्वर्ट करके रहना है. व्हेन यू आर सॉल्विंग द एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस, तो टेक द लिमिट s टेंड्स टू 0, एंड व्हेन यू आर टेकिंग द क्वेश्चंस फॉर द पॉलिनोमियल्स, देन आप हमेशा उसको s टेंड्स टू 0 लीजिए. तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेशन यूज करिए, nh की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है 2 से एंड लिमिट आपने लगा दी है, तो आपके पास आंसर आ गया लास्ट में e की पावर 2 माइनस e की पावर माइनस 2 अपॉन 2. अभी एक स्टेप जो हमने इसको यहाँ पर किया है, एक बार हम कॉपी इस पर भी बोर्ड पर भी ट्राई कर देंगे, हो सकता है कुछ आपको देखने में समझ में प्रॉब्लम आ रही हो. देख लीजिए आप ये कैलकुलेशंस कैसे हमने इसको सॉल्व करी है. तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था जो हमारे पास था e रेज टू पावर माइनस 2, e रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 2h, e रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 4h. अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, लिमिट s टेंड्स टू 0 h और यहाँ से e रेज टू पावर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए पूरे में. तो क्या बचेगा देखिए 1 e रेज टू पावर 2h, e रेज टू पावर 4h है तो इसको आप लिख सकते हैं 2h का होल स्क्वायर, बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई पावर, पावर मल्टीप्लाई इनटू पावर, पावर रेज टू पावर, पावर का मतलब होता है पावर पावर में मल्टीप्लाई होती है. और लास्ट में क्या आएगा देखिए हमारे पास e की पावर 2h की पावर n माइनस 1. ये हमारे पास एक टर्म आ गई. अब आप लोगों ने जीपी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, a प्लस ए आर स्क्वायर ए आर एन माइनस 1, ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. ये फॉर्मूला दोनों फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, इसको आप आर एन माइनस 1 या 1 माइनस आर की पावर एन भी यूज कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में ए 1 है और आर हमारे पास क्या है, ई रेज़ टू पावर 2h है. तो फिर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसा अभी हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ई रेज़ टू पावर माइनस 2 और इसको लिख सकते हैं ई की पावर 2h की पावर n माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2h माइनस 1. ये अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई है. अब इसको सिंप्लीफाई करना, अभी हमने बताया था कि आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है. देख सकते हैं आप इसको, इस क्वेश्चन को हमने h की फॉर्म में ही बताया था, तो इस h को तो हमारे पास साथ में ले जाइए और ये हो गया e की पावर माइनस 2 और इट इज n इंटू h, e रेज़ टू पावर 2nh माइनस 1 और साथ में हमारे पास क्या आ गया h अपॉन e रेज़ टू पावर 2h माइनस 1. ये हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म आ गई. अब आप देख सकते थे कि स्टार्टिंग में हमने NH को बताया था आपको कि NH क्या है इस क्वेश्चन में. हमारा NH हमने इस क्वेश्चन में 2 लिया था. तो आप देख सकते हैं क्या आया, ये लिमिट s टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 2, इट इज e की पावर 4 माइनस 1. यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाइए, तो 2 की मल्टीप्लाई आप कर लीजिए यहाँ पर फॉर्मूले को बनाने के लिए यहाँ पर, और 2 का डिवाइड कर लीजिए आप. तो आप देख सकते हैं कि लिमिट s टेंड्स टू 0 के बाद ये हमारे पास 1 हो गया
और रेस्ट हमारे पास आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक में जो मेनली हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, एक तो लिमिट एज ए सम जो हमने अभी डिस्कस किया, वी डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। वन इज अबाउट पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद स्क्वायर की बात करी, फिर एक्सपोनेंशियल की बात करी। तो बस अब हम अपने सेकंड जो सेशन के पार्ट में इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका उठाएंगे जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है, उसको हम देखेंगे। सर, कैन वी टेक ए शॉर्ट ब्रेक? प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। स्वयं बने, हम Welcome students again. Now second session of this topic, and today in the part now we are taking definite integral, and definite integral में अब हम ले रहे हैं properties of the definite integrals। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की। पहले हम इन प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसके बाद नाउ वी विल डिस्कस द सम क्वेश्चंस। अभी हमने पढ़ा था कि वी नो अबाउट की डेफिनेट इंटीग्रल्स समहाउ इट इज द एरिया ओनली,
जब हमें डेफिनेट इंटीग्रल पता करना होता है तो वो एरिया की बात आती है। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में है, तो आप देख सकते हैं b2a fx dx अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, देन यू कैन चेंज द लिमिट, इट इज माइनस a to b। व्हेन यू चेंज द लिमिट और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो इट इज चेंज बाय द नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन से हमारे पास रिप्लेस हो गया। सेकेंड वन जीरो विद इंटरवल, अगर सपोज a से a fx की बात कर रहे हैं तो बच्चों आप समझ भी सकते हो a से a fx में कोई एरिया ही नहीं होगा हमारे पास, एक सिंपल एक लाइन की बात चल रही होगी कि a से a उसी पॉइंट पर एरिया फाइंड करना है, so it will be 0. Constant multiple, the same concept we use in the indefinite integral. When you multiply k, तो k हमारे पास constant बाहर आ जाता है उससे। Same concept, sum and difference as usually in the indefinite integral, the same for the definite integral. When it is plus minus fx plus gx, तो it is fx plus minus अलग-अलग फंक्शन में डिवाइड हो जाता है। कि फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिविटी जो प्रॉपर्टी है, इसे हम और दोबारा से पढ़ेंगे एक तरीके से, और इट्स वेरी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। a से b fx dx, सपोज यू हैव ए डेफिनेट इंटीग्रल एंड b to c, देन यू कैन ऐड a to c। सपोज फर्स्ट फंक्शन की अपर लिमिट अगर सेकंड फंक्शन की लोअर लिमिट से सेम है, ऑन साइड कर रही है, देन यू कैन ऐड, इट विल बी इक्वल टू a to c fx dx। इसके अलावा ये कुछ मैक्सिमम मिनिमम इक्वलिटीज एंड डोमिनेशन प्रॉपर्टीज है, वेरी यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल, कि अगर कोई फंक्शन है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रखी है इंटरवल, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन की है वो इस इंटरवल में लाइज करती है। सेम तरीके से डोमिनेशन प्रॉपर्टीज में अगर fx और gx दो फंक्शन है ऑन द क्लोज इंटरवल a b, इफ fx ग्रेटर इक्वल टू gx, तो उसका जो इंटीग्रल होगा a से b gx वो भी इससे ग्रेटर होगा हमारे पास। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। अब जरा इन कुछ प्रॉपर्टीज का एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। आज हमारे टॉपिक्स में हमने कहा था कि हम प्रॉपर्टीज को कुछ प्रॉपर्टीज का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। जैसे ये देख रहे हो कि जीरो विद इंटरवल की प्रॉपर्टीज आप फर्स्ट में देख सकते हैं, तो एरिया यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एरिया यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो रहा है, केवल कोई एरिया ही नहीं है हमारे पास। यू कैन सी इन द सेकंड बी, कांस्टेंट मल्टीपल k इज मल्टीप्लाई बाय 2, k इज इक्वल टू 2, देन यू सिंपली कैन सी द एरिया इज डिवल। इन द थर्ड वन यू हैव द टू एरिया, सपोज यू हैव द टू एरिया a to b एंड अदर एरिया a to b दूसरा एरिया, देन यू कैन ऐड दीज एरिया। The fourth one is, suppose a to b fx dx and b to c fx dx. There are just two regions. Then you can add these, so it will become a to c fx dx. So these are the geometric interpretation. The same for the maximum minimum inequality and the same for the domination properties. So these are the some basic properties. तो देखते हैं हम इन बेसिक प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। यस, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे ये बताया गया है स्टूडेंट्स, जैसे हमने भी पहले भी डिस्कस किया कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, अगर प्लस माइनस में फंक्शंस होंगे तो इंटीग्रेट दोनों पे अलग अलग यूज हो जाएगा। अब देख सकते हैं सिंपल अलग अलग तरीके से हो रहा है। लास्ट में देख सकते हैं 3 to 1 होगा तो 1 to 3 हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा उससे। तो ये सब हमारे पास छोटी छोटी सी बातें हैं। यस, यहाँ पर हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशंस की बात चल रही है। अब देख सकते थे सिंपल क्या है हमारे पास। सपोज यू आर टेकिंग a to b c dx, तो c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रल x होता है, तो x को अगर रिप्लेस करेंगे b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज इक्वल टू b माइनस c। तो ये बहुत स्मॉल सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम बता रहे थे कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आप इनका यूज कैसे करते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, योर बोर्ड एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स एज वेल। तो देखिए क्या है वो, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और अब हमारा सारा सेशन इन प्रॉपर्टीज पर चलने वाला है कि क्या प्रॉपर्टीज है। इसमें से कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास वही है जिसे आपने भी पढ़ा भी था। एक बार इनको पढ़ लेते हैं। हम कुछ नाम यूज कर रहे हैं P0 P1। देखिए क्या प्रॉपर्टीज हैं। P0 a to b fx dx, सपोज यू हैव ए फंक्शन a to b डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में दिया हुआ है, देन यू कैन टेक इट a to b ft dt, मींस चेंज ऑफ वेरिएबल, डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। वेरिएबल फॉर्म में अगर आप x को t और t को कुछ u v कुछ भी ले सकते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसके ऊपर वैल्यू पर। द सेकंड प्रॉपर्टी P1 a to b fx dx को माइनस b to a, ये भी आपने अभी पढ़ा था कि अगर a से b fx dx कोई हमारे पास फंक्शन है तो माइनस b to a भी लिख सकते हैं। नाउ P2 इज देयर, P2 इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल है। a to b fx dx, ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज ये यू हैव ए नंबर c व्हिच लाइज बिटवीन a to b, देन यू कैन चेंज इंटरवल इनटू a to c प्लस c to b।
स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये आपको केवल 2 इंटरवल में चेंज करना है। यू कैन चेंज a to b इन n इंटरवल्स। अगर उसके बीच में n वैल्यूज डाल दें ऑर्डर में, तो आप उसे n इंटीग्रल्स के सम के रूप में भी दिखा सकते हैं सारी। दिस इज नॉट फॉर ओनली वन, तो भी लगेगा कि आपको 2 ही सम हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास P3 की बात आ जाती है। तो P3, हाँ स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है P3 हमारे पास क्या है, a to b fx dx। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो उसको आप a to b f a plus b minus x लिख सकते हैं। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये P3 और P4। और कहा जाता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर अगर कुछ ना आ रहा हो आपको, तो ये P3 P4 लगा देंगे। जो भी इसमें से यूज होगी, P3 P4 बेसिकली दोनों एक ही टाइप की प्रॉपर्टीज है। तो इसका एक रूल है कि व्हेन यू चेंज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अगर आप दोनों के सम से माइनस कर देंगे वेरिएबल को, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। सेम P4 इज यूज्ड। P4 यहाँ पर हमारे पास ये है कि अगर हम b को a से प्लेस कर रहे हैं, यू टेक a इक्वल टू 0। द सेम प्रॉपर्टी ये है। नाउ P5 अगेन इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि 0 to a fx dx को 0 से a प्लस 0 से a f to a minus x में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये P5 की जो फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये P6 में कन्वर्ट होती है। और P6 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो देखिए क्या ये P6 की बात चल रही है कि 0 से 2a fx dx, 0 से 2a fx dx अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो उसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx होती है when f 2a minus x equal to fx, and it is 0 when f 2a minus x equal to minus fx। ये हमारे पास इसका हम यूज करने वाले हैं प्रॉपर्टीज का। तो नाउ इन द P7 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है, स्पेशली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा। माइनस a to a fx dx को यू कैन राइट ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx when f is a even function। and what about the meaning of even functions? Even function means f of minus x equal to fx when you replace x by minus x, there is no change in the function, it is called the even function। what type of function they are like cos x में जब आप x को minus x से replace करते हैं, there is no change in the function, same as fx is equal to x square, fx is equal to 1 plus x square, these all are the even functions। again minus a to a fx dx equal to 0 if f is an odd function। तो इसमें अगर ये odd function होगा तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब जरा देखिए जल्दी से हम इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि हाउ टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर द यूज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन द क्वेश्चंस। तो जल्दी से हम इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने लास्ट सेशन में हम आएंगे जब तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपसे बात चल रही है। तो देखिए प्रॉपर्टी है हमारे पास P0, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अब सिंपल क्या करेंगे, f हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, x को आप p से प्लेस कर सकते हैं सीधे हमारे पास। उसके बाद P1 प्रॉपर्टी है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि अगर सपोज f a to b fx dx कोई फंक्शन है और उसकी जो वैल्यू है fb माइनस fa है, तो अगर आप उसमें माइनस लगा देंगे तो वो fa माइनस fb हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू b2। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल आप इसको बता सकते हैं। अगेन ये थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में सपोज यू टेक ए वैल्यू c बिटवीन a एंड b, so now it is f a से b fx dx fb माइनस fa। अब आप f a से c को कैसे खोलेंगे स्टूडेंट्स, fc माइनस fa, और fc से b को कैसे खोलेंगे, fb माइनस fc। अब when you add these two terms then fc being cancelled you will get fb माइनस fa। तो बताया कि आप में कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। चलिए अब हम आते हैं अपनी प्रॉपर्टीज पर और अपने कुछ क्वेश्चंस पर, और इसमें सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमारी पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी अभी जो हमने पढ़ाया था T2, जिसमें आपको a से b और इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, उस पर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हम स्क्रीन को शेयर को हटा रहे हैं और इसको हम अपने अलग तरीके से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन है। -1 to 2 मॉडुलस x³ माइनस x dx, आपको इसका डेफिनेट इंटीग्रल पता करना है। स्टूडेंट्स whenever you are solving a question involving indefinite इंटीग्रल में या डेफिनेट इंटीग्रल में मॉडुलस आता है, तो आपको मॉडुलस को खोलना आना चाहिए। और मॉडुलस x की एक जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास देखा जाए कि मॉडुलस x का फंक्शन की डेफिनेशन ये होती थी कि मॉडुलस x होता था व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 0, इट इज -x व्हेन x लेस देन 0। तो केवल ये टर्म है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि मॉडुलस कहां से कहां पर हमारे पास पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है। चलिए पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम इसके अंदर। तो फैक्टराइजेशन किया तो इट इज x² माइनस 1। अगेन इसके फैक्टर करिए, इट इज x माइनस 1
x प्लस 1। तो अब आपके पास एक, हमने पहले भी एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसका आपको साइन पता करना है कि वेयर इट इज पॉजिटिव वेयर इट इज नेगेटिव, तो कैसे पता करते हैं उसके साइन को, तो वो देख लीजिए। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ये हमारे पास रियल लाइन है। आप क्या करें कि इसके तीनों जीरोस को रियल लाइन पर लिखिए पहले कहा। तो जीरोज आप देखते हैं, इसका जीरोज -1 है, इसका जीरो 0 है और इसका जीरोस क्या है 1। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये और बहुत यूजफुल होता है कि कैसे आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन का साइन पता करना होता है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा किस में नेगेटिव होगा। और इसमें कुछ चेक नहीं करना है। अगर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब सारे एक्स की पावर पॉजिटिव लिखी हो तो केवल आपको इतना करना है, फ्रॉम राइट से स्टार्ट करना है, इट इज ऑलवेज प्लस। यू हैव नो नीड टू चेक। अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 से ग्रेटर कोई भी रख के देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये तो बताने के लिए, बट इन एग्जाम यू हैव नो नीड टू चेक। इसके बाद ऑल्टरनेट साइन आ जाते हैं। ये हमारे पास साइन आ गए, तो इससे हमें ये पता चल पा रहा है कि किस किस इंटरवल में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है। तो आपको अब यही करना है कि ये जो -1 से 2 लिमिट्स है, -1 से 2 जो हमारे पास लिमिट है, 2 इसके आगे कहीं भी होगा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इसको इन इंटरवल्स में ब्रेक कर लेना। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो पहला इंटरवल -1 से 0 आ रहा है, उसको हम लिख लेंगे -1 से 0 और इसके साथ मॉडुलस में फंक्शन हमारे पास दे रखा है x माइनस 1 x प्लस 1 dx प्लस दूसरा इंटरवल है 0 से 1, 0 से 1 दोबारा से उसी को लिख लो x माइनस 1 x प्लस 1 और प्लस तीसरा इंटरवल है हमारे पास 1 से, जो आपको अपर लिमिट है उसको फाइंड करना है, 1 से 2 x माइनस 1 और x प्लस और dx। ये तो पहला काम हमारे पास, जैसा हमने बताया था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू कन्वर्ट a to b इन a to c एंड c to b ओनली। ऐसा नहीं है कि केवल दो लिमिट्स में ही कन्वर्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो -1 से 0। अब इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट से कोइंसाइड करेगी, फिर इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट से कोइंसाइड करेगी और फंक्शन सेम है, ये सारे ऐड हो सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आया देखिए इसका, यस। अब आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो तीनों टर्म्स हैं ये तीनों मिला के -1 से 0, -1 to 0 में पॉजिटिव दे रही है और इन तीनों का प्रोडक्ट आपको पता ही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 से 0 x³ माइनस x, पॉजिटिव वैल्यू देगा इसमें dx प्लस नेक्स्ट इंटरवल इज 0 to 1, 0 to 1। इस इंटरवल में आप देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू देगा, तो इसको लिखेंगे -x³ माइनस x और dx। नाउ इट इज 1 to 2, 2 यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है क्योंकि हमारा जीरोस नहीं था, तो आप लिख सकते हो वो पॉजिटिव ही है, हमारे पास पता ही है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 से 2 और ये पॉजिटिव होगा x³ माइनस x। ध्यान रहे x³ माइनस x क्या था, जो हमारे पास इन तीनों का प्रोडक्ट था। बस अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। जब आपने मॉडुलस ब्रेक कर लिया तो अब तो हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन बचा हुआ है इसमें, और सिंपल इंटीग्रेशंस तो आपने आज हमने पढ़ ही लिया है डेफिनेट इंटीग्रल में कि इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लीजिए आप। x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x4/4 माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस लिमिट क्या है हमारे पास -1 से 0। इसमें ध्यान रहे माइनस आ जाएगा हमारे पास, तो या तो इसको बाहर माइनस लिख लीजिए, ये आ गया हमारे पास माइनस। तो अगेन x4/4 माइनस x²/2 और लिमिट्स क्या है 0 से 1 प्लस। अब थर्ड में आ जाइए, थर्ड हमारे पास 1 से 2 था, अगेन x4/4 माइनस x²/2 और लिमिट क्या है 1 से 2 बस। अब इसके बाद जैसा कि हमने दिखाया हमारे पास क्वेश्चन में कि आप इसको डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास सीधा जैसे बताया था कि पहले इसमें अपर लिमिट रिप्लेस करिए, तो 0 रिप्लेस करेंगे, 0 तो 0 ही आएगा, माइनस। अब लोअर लिमिट रिप्लेस करिए इसमें, तो -1 x के प्लेस पर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1/4। फिर -1 2 पर रखेंगे तो अभी प्लस ही आएगा। सेकंड हमारे पास आ गया, सेकंड में पहले अपर लिमिट रखिए 1/4 माइनस 1/2, लोअर लिमिट 0 ही आएगी। थर्ड में पहले इसमें 2 पुट कर दीजिए, 2 की पावर 4/4
-2 की पावर 2 अपॉन 2 और फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। लोअर लिमिट क्या है 1, इट इज 1/4 माइनस 1/2। और बस स्टूडेंट्स इसको बहुत सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए कि 1/4 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, और ये हमारे पास सीधी कैलकुलेशन में हम चेक करके आपको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्म का आंसर आ रहा है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि उसमें प्रॉपर्टीज के बारे में कैसा पता चलेगा। ये आपके कैलकुलेशंस के लिए कि आपको कितना आ रहा है, ये आप अपने आप चेक कर लेंगे कि हमारे पास कितना आ रहा है। प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे इसको हम समझने जा रहे हैं। इस प्रॉपर्टीज को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, उन्हें आप जरा देखिए कैसे। 0 से π/2 1/1 प्लस √10x। देखिए क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है कि अगर इंटीग्रल बहुत टफ होगा तो इजीली यू कैन नॉट सॉल्व। आपको कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी है उसकी और उससे क्वेश्चन को फाइंड करना है, और प्रॉपर्टीज कैसे यूज करनी है उसको देखना है। और मैंने आपको आज बताया था कि जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमारे पास, उसमें हमारे पास जो P3 प्रॉपर्टीज थी और P4 वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कहा जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप P3 P4 को यूज करके देखिए, आपको कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा। चलिए कैसे क्या है, इसको हमने सपोज एक कैपिटल आई इंटीग्रल मान लिया है। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो केवल हम क्या करें, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आया 1/sin x अपॉन cos x, और बस इसको सिंप्लीफाई करके ऊपर ले जाएं एलसीएम लेके, तो इट इज cos x अपॉन cos x प्लस sin x। ये अभी भी कुछ क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट वी हैव टू डू, या क्या करें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमने कहा ठीक है, अगर ये साइन और कॉस आ रहे हैं, लिमिट π/2 आ रही है और हमें दिख रहा है कि π/2 पर आपके साइन और कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए तो प्रॉपर्टी 4 का जरा यूज करते हैं हम। प्रॉपर्टी 4, और प्रॉपर्टी 4 क्या आती है हमारे पास, 0 से a fx dx को आप 0 से a f a माइनस x dx यूज कर सकते हैं किसी से। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, तो 0 से π/2, और जहां जहां x आया यू हैव टू रिप्लेस x by π/2 minus x. Now replace x by π/2 minus x. x by π/2 minus x. ये सब हमारा dx भी है और dx भी है। तो अब देखिए क्वेश्चन किस फॉर्म। हाँ सर पूछ लीजिए सर। अच्छा ठीक है सर, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर। चलिए तो इसको देखिए अब क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आई चल रहा था और ये आई हमारे पास क्वेश्चन में भी चल रहा था। ये हमारे पास सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। देखिए cos x किस में कन्वर्ट हो गया, sin x में, और cos x किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास sin x में, और sin x किस में कन्वर्ट हो गया cos x में, और dx इट इज 0 to π/2। देखिए प्रॉपर्टी 4 अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ये है प्रॉपर्टी 4 यूज करने में, इसमें डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर ये डिनोमिनेटर चेंज हुआ तो इसका प्रॉपर्टी 4 यूज करने का यहाँ पर फायदा नहीं होगा। तो देखिए क्या होगा, अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और अब आप 1 + 2 कर लीजिए, 1 + 2, तो ये आई और ये आई, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो गया 2i, इट इज 0 to π/2, इट इज 0 to π/2। अब आप देखिए क्या हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर हमारे पास बदल रहा है, तो आप डिनोमिनेटर कुछ भी लिख दीजिए दोनों में से किसी एक को, इज sin x प्लस cos x, नीचे भी क्या आया हमारे पास sin x प्लस cos x, और ये क्या आया dx। अब देखिए अब आपके पास एक बहुत सिंपल फॉर्म यहाँ पर कन्वर्ट हो गई, और देखिए क्या आया है हमारे पास, ये हमारे पास आया 0 से π/2, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x, 0 से फिर 2i की वैल्यू आ गई π/2 एंड i इक्वल टू π/4। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, आंसर तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आ गया। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास ये तो समझ में हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास i/π/4 आया,
तो बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप जरा एक बार समझ लीजिए। देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के फॉर्म वाले, अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस लिख के दिखाऊंगा, सबके बारे में एक खास बात है, इन क्वेश्चंस का आंसर हमेशा होता है b माइनस a अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसमें अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 माइनस 0 अपॉन 2, इट्स पाई बाई 4। तो ऐसी जितने भी क्वेश्चंस की फॉर्म है जो देखने में बहुत डेंजरस लगेंगे, उन सबका आंसर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। चलिए अब जरा मैं आपको इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ। इसके अलावा कुछ व्यूअर्स की प्रॉब्लम भी थी। जैसे व्यूअर्स की एक प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि क्या हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल की बात करें तो आंसर अलग अलग आ सकते हैं अगर हम बात करें, और डेफिनिट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल में बेसिक डिफरेंस क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बेसिक डिफरेंस को बताया कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता था। इंडेफिनिट इंटीग्रल इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव्स, इट इन्वॉल्व द वेरिएबल सी के इन्वॉल्वमेंट से फंक्शन आता था हमारे पास। तो आप सी की वैल्यू को चेंज करेंगे और हमारे पास एक दूसरा इंटीग्रल आ सकता है वैल्यूज में, फंक्शन चेंज नहीं होगा फंक्शन। तो रही बात इसकी कि क्या इसके दो आंसर हो सकते हैं, आंसर दो नहीं हो सकते हमारे पास। पहली बात तो डेफिनिट इंटीग्रल का तो आंसर फिक्स है, पहली बात समझ लीजिए, बिकॉज डेफिनिट इसका नाम भी है डेफिनिट। हाँ अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करें तो आंसर चेंज नहीं आता, इसमें चेंज जो आता है केवल हमारे पास फॉर्म में चेंज आ जाता है, खाली किसी भी फंक्शन में केवल फॉर्म में चेंज आ सकता है, आंसर में चेंज नहीं आता है। जैसे सपोज किसी फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया और इसका आंसर निकल के आया sin x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस c, ये आंसर है। अब आप किसी भी कितने भी तरीके से इस फंक्शन का आप इंटीग्रल निकालिए, या तो आंसर साइन यही आएगा निकल के, और या कोई फॉर्म बदली हुई आ जाती है कई बार। फॉर्म बदले का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे इसका sin x के बारे में पता है हमें, एक बताया भी था एक बार आपको क्लास में कि sin x को अगर हम खोल दें तो ये आता है, और 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 आता है। तो 2 से 2 खत्म और cos से cos खत्म, तो ये आ गया 10x बाई 2 प्लस c। अब स्टूडेंट्स के बारे में ये दो विचार है कि क्या ये दोनों आंसर अलग अलग हैं, नो, आंसर दोनों का सेम है, फंक्शंस दोनों में सेम है, फंक्शन का पार्ट कांस्टेंट में ऐड कुछ भी अलग हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, उसमें कोई चीज नहीं है। तो ध्यान रहे इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल की ये बातें हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में वैल्यू हमारे पास फिक्स हमें पता ही नहीं है क्या है, बिकॉज इट इन्वॉल्व सी। बट अगर हम डेफिनिट इंटीग्रल की बात करें तो ये हमेशा फिक्स वैल्यू होती है। एक और व्यूअर की प्रॉब्लम है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल की बात करें तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ ही रहे थे जो अभी मैंने बताई थी, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस देख रहे थे वही हम आपको बता रहे थे। अब रही बात इसकी कि हमारे पास जो डेफिनिट इंटीग्रल है इसका तो डेली लाइफ में क्या यूज है। तो डेली लाइफ की बात करें या एप्लीकेशंस की बात करें तो बेसिकली आपको बता ही दिया था आज स्टार्ट होने से पहले कि जो डेफिनिट इंटीग्रल का जो मतलब होता है बेसिकली एरिया होता है, एरिया। जैसे अगर सपोज x a से b की बात कर रहे हैं और y इक्वल टू fx की बात कर रहे हैं और आपको इसका डेफिनिट इंटीग्रल निकालना है a से b fx dx, तो ये इसका एरिया है ये, और ये आपने एक छोटी सी यहाँ पर स्ट्रिप्स ली है और इसको पूरे एरिया में निकाल दिया। तो डेफिनिट इंटीग्रल इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके फिजिक्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसका बहुत यूज होता है। बहुत सारे वेरिएबल अब फिजिक्स में आपने देखा होगा कि अगर आप डेरिवेशंस कर रहे हैं बहुत सारी चीजों का, तो उसमें आप डेफिनिट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एरिया निकालने में 2-3 से ज्यादा कर्व है, उनका एरिया फाइंड करना है अगर आपको, तो उसमें आपको डेफिनिट इंटीग्रल का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों ने कहा कि बताया था आपको मैंने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम आज के बारे में बताए। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम बताया था कि जो अगर हमारे पास एरिया फंक्शन होता था, एरिया, एक बच्चे ने पूछा है कि एरिया फंक्शन क्या होता है, तो बच्चों एरिया फंक्शन यही होता था कि अगर कोई किसी इंटरवल की बात करें तो इट इज fx dx। ये यहाँ पर ये कंडीशन क्या है कि a डैश x इक्वल टू fx। यहाँ पर जो ax है इट इज कॉल्ड एरिया फंक्शन। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया कि ये डेफिनिट इंटीग्रल किस फॉर्म में आ रहा है। अब आगे बात करें और देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में और कुछ देख लेते हैं। जैसे अभी आपको बता रहा था कि देखिए ये सारे क्वेश्चंस देखिए बच्चों, जैसे ये 0 से पाई बाई 2, अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए sin क्यूब x अपॉन sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x,
ये आप इस क्वेश्चन को देखिए 1 से 2 एफ एक्स और 3 माइनस एक्स प्लस एक्स। आप इस क्वेश्चन को देखिए 0 से पाई बाई 6 से पाई बाई 3 साइन 5x अपॉन साइन 5x प्लस कॉस 5x। देखिए अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे एक पर्टिकुलर, तो जितने क्वेश्चंस होंगे उतनी बातें समझनी है। बट अगर आप क्वेश्चन को एक फैमिली में कन्वर्ट कर लें, एक सेट बना लें कि भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन का सेट है, तो ध्यान रखिए सेट की प्रॉपर्टी का, ये सेट का यही फायदा होता था कि अगर सपोज आप सेम टाइप के प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक सेट में कन्वर्ट कर लें, एक सेट में लिख लें, और फिर आप एक मेंबर के बारे में जान लें कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो फिर सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टीज जान सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जैसे ये तीनों क्वेश्चंस मैंने एक कैटेगरी में ही डाल दिए। तो देखिए बच्चों, तीनों क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करने की बात करें तो एक ही कैटेगरी से क्या होगा, इन तीनों क्वेश्चन की खास बात है कि इन सबका आंसर इसी फॉर्म में आएगा, b माइनस ए अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो अभी हमने किया था आज। अगर आप उसी फॉर्मेट में इसको लगाएं प्रॉपर्टी 4 और ऐड करें, इसका आंसर भी उसी फॉर्मेट से पाई अपॉन 4 आ जाएगा। अपर लिमिट क्या थी, पाई बाई 2 माइनस 0 अपॉन 2। हाँ, ये क्वेश्चन आप देखिए, अभी तो मैं अब आपको बता रहा हूं इसको कैसे आया, अब आपको एक बार बाद में, क्लास के बाद में इसको ट्राई करके देखना है क्या ये भी यही क्वेश्चन है। ऐसा ही, यस, आपसे ये भी वही क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि यहां पर क्या है कि आप देखिए कि अगर आप जो प्रॉपर्टी 3 हमारी बताई थी आज हमने, प्रॉपर्टी 3 a से b एफ एक्स डी एक्स हमारे पास था, उसको आप किसी भी स्टेप पर एफ ए से b a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर a1 है b2 है, तो किसी भी प्लेस पर 3 माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब आप इसको 3 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो स्टूडेंट्स दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, इट इज 2 माइनस 1 अपॉन 2। सॉल्व करके देखेंगे उसी कॉन्सेप्ट से। प्रॉपर्टी आपको 4 लगानी है, यहाँ प्रॉपर्टी 3 लग जाएगी और फिर दोनों को ऐड कर देना है। अब जरा यहाँ पर आइए, ये थोड़ा सा अलग है और स्टार्टिंग में देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्या प्रॉपर्टी 3 या 4 का कॉन्सेप्ट है, 3 का सॉरी, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों आ रहा है। तो यहाँ भी बच्चों एक बात देखिए, अगर आप पाई बाई 6 और पाई बाई 3 को ऐड करेंगे तो वो ये पाई बाई 2 बन जाएगा, बनेगा। और फिर सेम प्रॉपर्टी से जब हम यूज करेंगे एफ पाई बाई 2 माइनस एक्स लगाएंगे तो इसमें भी वही आ जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉस में कॉस साइन में, और फिर आप दोनों को ऐड करेंगे और फिर ऐड करने पर वो कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। इस क्वेश्चन का भी यही आंसर। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है इन क्वेश्चन को करने की, जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आता है कैसे। चलिए अब हम अपने जो क्वेश्चंस हमने आज प्रॉपर्टीज बताई है उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जरा देखिए, जरा एक क्वेश्चन है, माइनस पाई बाई 3 प्लस से पाई बाई 3, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 10x और dx। आपके पास एक क्वेश्चन है, देखने में बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्या करना है। और दूसरी तरफ हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, f माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और एक क्वेश्चन हमारे पास ले रहे हैं साइन qx और cos 4x और dx। और अब देखते हैं कि इसमें क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं। तो बच्चों एक बात इसमें ध्यान रखना है हमारे पास, whenever you get a question from minus a to a, whenever you get a question from minus a to a, तो आप कोशिश करना है कि जो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो क्या फॉलो हो सकता है। देखिए स्पेशली ध्यान रखिए कि अगर आप माइनस ए से प्लस ए वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो व्हेन यू टेक द क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स ओनली, व्हेन यू टेक द क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइक साइन कॉस ओनली, तो तब इन क्वेश्चंस में इवन ऑड की प्रॉपर्टी फॉलो हो सकती है। लेकिन अगर जैसे ई की पावर फॉर्म आ जाए तो यहाँ पर इवन ऑड का इतना कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होगा। कि अगर आप इवन ऑड का क्या मतलब बताया था कि अगर x के प्लेस पर माइनस एक्स रखें और एफ एक्स ही आ जाए तो फंक्शन को हम इवन बोलते थे, इवन फंक्शन।
और अगर x के प्लेस पर -x रखने पर माइनस आ जाए तो वो ऑड बोलते थे। तो जब आपके पास -a से a प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन आए तो आप तो पहले इवन ऑड के बारे में देख लीजिए कि इवन ऑड है या नहीं, और अगर इवन ऑड नहीं है तो फिर आप अपना वही ध्यान रखिए कि जैसे ये क्वेश्चन आया और आपको कुछ पता नहीं चल रहा क्या करना है, इवन ऑड ये हो नहीं सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है, तो अब आप क्या करिए, इसमें अपना वही प्रॉपर्टी फॉलो करिए जो हमारी प्रॉपर्टी 3 थी, जिसके बारे में आज बोला था कि अगर कुछ नहीं आता तो प्रॉपर्टी 3 को यूज करके देखिए क्या थी। प्रॉपर्टी 3 हमारे पास क्या थी वो आपको बताया था हमने, a से b fx और dx को आप किसी भी स्टेप पर a से b f a प्लस b माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। अब जरा एक बार देखिए स्टूडेंट्स, इसमें a माइनस पाई बाई 3 और b प्लस पाई बाई 3 है, तो अगर इस प्रॉपर्टी को यहां लगाएं तो ये क्या आएगा, ये आएगा f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि a और b आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों ये बच्चों को कई बार लगता है कि क्या हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं ना। यहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज हम इस तरीके से करेंगे कि x के प्लेस पर माइनस एक्स भी रख सकते हैं, सीधा सीधा। तो देखिए क्या आया, पाई बाई 3 और इसी प्रॉपर्टी के यूज से x के प्लेस पर माइनस एक्स रख दीजिए यहाँ पर, ये e की पावर 10 ऑफ माइनस एक्स और dx। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 3, तो देखिए क्या है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस 10x और dx। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको आप देख लीजिए, इसको अगर अपोन में ले जाएंगे तो ऊपर में ये ऊपर चला जाएगा, e की पावर 10x और ये इधर आ जाएगा e की पावर 10x और प्लस 1। हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। आप देखिए दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। जब भी आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, whenever you use a property 3 and you add these two terms, तो आप देखेंगे कि ऐड करने से क्या होगा कि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो आप देखिए बच्चों, जब इसको भी हमने i माना और इन दोनों को ऐड किया तो क्या होगा हमारे पास, when you add these two terms denominator in the both is same, ऊपर 1 प्लस e की पावर 10x। तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा निकल के हमारा, ये आएगा 2i, इट इज माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, it is 1 plus e raised to power 10x और 1 plus e raised to power 10x और dx, ये दोनों कैंसिल, it is again 1 और उसका इंटीग्रेशन x होता है, it is minus pi by 3 2 plus pi by 3, it is 2y। और अब इसके बाद सॉल्व कर दीजिए इसको, pi by 3 minus pi by 3, आपके पास आंसर निकल के आया, इट इज 2 पाई बाई 3। तो ये निकल के हमारे पास आ गया कि हमारे पास इस फॉर्मेट में आ गया। तो ये देखिए बच्चों क्या है, देखिए कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कई बार कि डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर नेगेटिव आ गया तो क्या आया। देखिए अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया हमारे पास पॉजिटिव टर्म होता है, लेकिन अगर किसी फंक्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो वो नेगेटिव वैल्यूज दे देता है। तो तभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास ऐसे होते हैं कि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन नेगेटिव आ जाता है हमारे पास उसकी फॉर्म में, तो नेगेटिव बात होता है। लेकिन जब हम एरिया की बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो एरिया को हम पॉजिटिवली कंसीडर करते हैं। जैसे कभी आपने छोटी सी क्लासेस में देखा होगा कि हमारे पास एरिया अगर कैलकुलेट करने पर -5 तो उसका मॉडुलस लेना होता है। तो ध्यान रहे डेफिनेट इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो उस फॉर्मेट में हमारे पास ले सकते हैं। चलिए इसके अलावा कुछ व्यूअर्स की प्रॉब्लम आ रही है और उनको हम देख लेते हैं कि ये कैसे हमारे पास सॉल्व हो रही है। एक दो प्रॉब्लम्स आई हैं व्यूअर्स की, जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि 1 से 2 मॉडुलस x माइनस 3 क्या होगा, 1 से 2 अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों इसके बदले में आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि 1 से 2 और या इसको ले लेते हैं 1 से 3 और मॉडुलस x माइनस 2, मैं ये ले लेता हूं। अब आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, एक बच्चे की प्रॉब्लम ये वाली आई है लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने ये प्रॉब्लम लिखी है, क्या है, दोनों को आप साइमल्टेनियसली देखिए इसमें क्या होता है। अब आप ये देखिए सबसे पहला काम जो डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है, जैसे मॉडुलस x माइनस 3 है तो ये x माइनस 3 का रूल ये होता है, इट इज x माइनस 3 व्हेन x ग्रेटर देन 3, इट इज माइनस x माइनस 3 व्हेन x लेस देन। तो आपको इतना देखना है कि जो 1 और 2 लिमिट्स है ये इस फंक्शन का जो जीरोज है, जीरोज 0
इसका जो जीरोज है मॉडुलस फंक्शन का, वो इस लिमिट के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ये इस लिमिट के बीच में आ रहा है तो आपको उस पर ब्रेक करना है उसको, और अगर ये लिमिट के बीच में नहीं आ रहा तो बस इसको सीधा कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर 1 से 2 है, यानी इसकी अपर लिमिट 2 है, यानी 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब 3 से तो कम ही होगा। और जब इसकी वैल्यू 3 से कम है तो पता है कि जो मॉडुलस होगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो हमारे पास ये क्या देगा, हमारे पास -x-3। ये अब माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए हमारे, सॉरी -x-3, ये माइनस आ गया बाय इसकी वजह से, क्योंकि इसकी अपर लिमिट इससे कम है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, x² - 3x, और लिमिट क्या आया 1 से 2। अब इसके बाद तो ये बहुत आसान है हमारे पास, कि अगर हम देखें इसको हम खोल देंगे, लेकिन मैंने आपके सामने ये जो क्वेश्चन रखा है, जिसको क्यों रखा उसको देखिए, ये तो बहुत आसान हुआ। देखिए अगर आपकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रल की, अगर उसका जीरोज इन दोनों के बीच में आ रहा है तो मान लीजिए वो, ये बात फैक्ट है कि वो उसको कम से कम आपको दोनों इंटरवल्स पे अलग अलग ब्रेक करना होगा। और अगर ये इसके बीच में नहीं आ रहा है तो या तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव देगा। जैसे यहाँ पर 1 से 2 x-3 लिखा हुआ है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं लिख दूं 1 से 2 मॉडुलस x dx, 1 से 2 मॉडुलस x dx, अगर हम ये भी लिख दें तो बच्चों आप देखो कि इसका जो जीरोज है वो जीरो पे पॉजिटिव नेगेटिव देता है वैल्यू, लेकिन लोअर लिमिट ही 1 है, उससे बड़ी हुई है, तो सीधा ध्यान रखना है कि अगर इसका जीरोज लोअर लिमिट से भी लेस हो तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? पॉजिटिव। और अगर उसका जीरोज अपर लिमिट से भी बड़ा हो तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर ये दोनों एक एक से ही ब्रेक हो गए, लेकिन बात यह है कि ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। ये इसमें क्या होगा, हमने देखा कि 1 से 3 है तो इसका जो मॉडुलस का साइन है वो 2 पे ब्रेक हो रहा है, तो इसको 2 से ब्रेक कर लेना है, 1 से 2 और 2 से 3, dx प्लस dx। अब देख लीजिए बच्चों, 2 से भी कम है और मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है इसकी, x-2 is equal to positive x-2 when x greater than 2 and नेगेटिव होगा x-2 when x less than 2। तो इसका मतलब ये 2 से भी कम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -x-2, और यहाँ ये 2 से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू होगी +x-2। बस अब हमारे पास केवल क्या हुआ कि ये दोनों हमारे पास अलग अलग इंटीग्रेशन आ गए। अब तो बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको खोल दीजिए, x² - 2x 1 से 2, और इसका भी क्या आ गया हमारे पास, x² - 2x इट इज 2 से 3। ये हमारे पास हो। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें फाइंड आउट आ गई हमारे पास इंटीग्रल की। इसमें हमारे पास यही निकल के आया है बच्चों कि आपको बस बिफोर टू ज्वाइन द क्वेश्चन या क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको देख लेना है कि जो मॉडुलस साइन है वो उसका जीरो किस पर उसका ब्रेक हो रहा है, जीरो जो हमारे पास है। चलिए अब हम बच्चों अपने लास्ट उस पर आ गए हैं और कुछ अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करने की बारी थी हमारे पास बात करने की, उसको हम देख लेते हैं। एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी थी कि 1 से 2 e⁻x dx का क्या होगा। तो बच्चों आज हमने आपको कराई थी -1 से 1 e⁻2x dx, ये हमने आपको कराया था। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि हमने आपने जो लिमिट एजेस हमको बताया था, ये लिमिट एजेस, तो हमने आज आपको बताया था कि 1 से 2 पर क्या होगा, -1 से 1 हमने आपसे डिस्कस किया था। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आप इसको यूज कर सकते हैं कि -1 से पर क्या होगा। अब देख लीजिए, क्योंकि अब हमारा सेशन लास्ट पर है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। और उसके लिए बच्चों देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने दे रहा हूं मैं आपको, sin x प्लस cos x का जैसे होल स्क्वायर होता है, आपको पता होगा क्या होगा, इट इज sin² x प्लस cos² x प्लस 2 sin x cos x। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस sin 2x। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और एक ये फॉर्मूला है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। इसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग cos x माइनस sin x भी लिख सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा लिखना है। तो हो गया 1 माइनस sin 2x, और अगर इनको दोनों को ऐड कर लें
ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। और एक बार इन दोनों को अगर माइनस भी कर ले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चंस आईआईटीज वगैरह में भी कॉम्पिटिशंस में भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास π/6 से π/3 sin x प्लस cos x अपॉन sin 2x। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, इसका इंटीग्रेशन देखें, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है आपको, whenever you get in question sin x plus cos x, sin x minus cos x, sin 2x, ये तीनों टर्म्स में से कोई भी दो टर्म या एक टर्म आपको क्वेश्चन में नजर आ रही हो तो समझ लीजिए ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला, या फिर एक बार इनको माइनस करेंगे तो अभी बस समझ लीजिए जब भी ये टर्म्स आपको नजर आ रही है तो देखिए कैसे। अब इसमें आपको नजर आ रहा है sin x प्लस cos x और sin 2x। याद होगा आपको कि जब हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल की क्लास आपसे डिस्कस करी थी तो उसमें बताया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में डिनोमिनेटर जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, और उसको हटाना बहुत जरूरी है। अब उसको कैसे हटाया जाए, हमारे पास sin 2x हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन हमें सर्च करना पड़ेगा कि उसका डेरिवेटिव हमें कहीं मिल जाए। अब ये sin x प्लस cos x हमारे पास आ रहा है, और जबकि देखा जाए कि अगर आप sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तब ये निकल के आता है sin x प्लस cos x। तो आप क्या करें, इसको sin x माइनस cos x की फॉर्म में कन्वर्ट करें। और अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसका स्क्वायर, क्या बताया था, 1 माइनस π/3 sin x प्लस cos x अपॉन sin 2x की वैल्यू इससे रिप्लेस करिए तो ये आ गई बच्चों 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर और dx। अब आप देखिए कि आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन मिला जिसका डेरिवेटिव उसको कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा। तो दिख रहा है आपको sin x माइनस cos x आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। तो sin x माइनस cos x को अगर आप t ऐड करेंगे t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x लेट किया है आपने इसको, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा sin x, और ये क्या है dx इक्वल टू dt। तो आप देखिए कि अब आपके पास ये सारी टर्म्स ऊपर नजर आ रही है, sin x cos x प्लस sin x dx इक्वल टू dt। हाँ, तो डेफिनेट इंटीग्रल में एक बात ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और भी है कि अगर आप किसी फंक्शन को लिमिट्स को चेंज कर रहे हैं तो अब आप ध्यान रखिए, या तो हमारे पास क्वेश्चन को उसी में दिया, लिमिट्स भी चेंज कर लीजिए। तो देखिए लिमिट्स कैसे चेंज करनी है कि जैसे सबसे पहले लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं हम, और लोअर लिमिट में बात कर रहे हैं कि हमने x को π/6 रखा है तो उसमें π/6 रखी है x की वैल्यू। तो जब x π/6 रखा जाएगा तो t की वैल्यू क्या आएगी निकल के, देखिए इसमें sin π/6 माइनस sin cos π/6, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। sin π/6 आपको पता है 1/2 माइनस √3/2, ये हमारे पास है। अगर इसको पॉजिटिव पहले लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, √3/2 माइनस 1/2। अब इसमें x की जगह एक बार आप अपर लिमिट रख दीजिए π/3, तो जब π/3 रखेंगे इसमें तो क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, sin π/3 माइनस cos, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 माइनस 1/2। तो हम डेफिनेट इंटीग्रल में आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आप किसी फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करने जा रहे होते हैं तो आप उसको अकॉर्डिंग टू लिमिट्स, जैसे x की लिमिट्स थी यहाँ पर ये, तो अब आप इसे t की लिमिट्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो पूरा क्वेश्चन t की फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये जो sin x प्लस cos x था ये आपको दिख रहा है यहाँ से, ये सारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, ये तो हो गया dt, और ये किस में रह गया हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर, और लिमिट्स हमारे पास अब t की जो आ गई है वो ये आ गई है, क्या, माइनस √3/2 1/2 प्लस √3/2 माइनस 1/2। तो ये हमारे पास सारा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट आ गया। अब तो आपको सॉल्व करना बड़ा आसान है, अब आपको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, क्योंकि ये किसका इंटीग्रल होता है, ये आपको पता था, ये होता है साइन इनवर्स t का इंटीग्रल। और लिमिट्स क्या है, देखिए ये दोनों सेम है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको a ऐड कर लूँ, इस वाली टर्म्स को, इसको a ऐड कर लूँ तो हो जाएगी माइनस a से प्लस a। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको a ऐड कर लिया है,
तो आप जब लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स माइनस ए। ये अब माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ए की वैल्यू अब आपको पता थी, हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐड कर ली थी, √3/2 माइनस 1/2, इससे आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2। तो इस तरीके से हमारे पास देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो हमारे पास डिस्कस किया है, इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। इसलिए बिफोर टू रीच द क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन की प्लानिंग कर लें। और इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया कि sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x और ये sin 2x के बीच में जो रिलेशन है, ये हमारे पास बहुत यूजफुल रिलेशन होता है। बच्चों बस अब हमारा सेशन खत्म होने जा रहा है, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे बताने जा रहा हूँ आपको, बस उसको ध्यान रखिए, देख लीजिए। आज अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की अपने बच्चों बात करें, क्योंकि लिमिट एज सम जो हमारा टॉपिक था वो तो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें हमारे पास कोई आपको क्रिएटिव थिंकिंग यूज नहीं करनी, लेकिन जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस हैं वहां पर क्रिएटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन को देख के रीड करना है कि वो किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। मैंने आज आपको बताया P3 P4 एक ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बार हमारे पास डायरेक्ट होती हैं। अब जैसे मैंने आपको पीछे आपको याद हो एक क्वेश्चन लिखा था और उसको डिस्कस नहीं किया, ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए, ये देखिए, अगर साइन कॉस पॉलिनोमियल ऐसे में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हमेशा एक चीज ध्यान रख लो स्टूडेंट्स कि आपको इवन और चेक करना होता है। जैसे f(x) की फंक्शन है ये sin (3x) और cos (4x), तो अब इसमें f of -x अगर आप रखें तो क्या होगा, sin (3 - x) और cos 4x। तो देखिए माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि आपको पता है कि साइन में नेगेटिव बाहर आ जाता है, कॉस में नहीं आता, और पावर भी 3 है तो ऑड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस साइन (3x) और cos 4x, और ये बन गया माइनस (f(x). इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑड है, ये फंक्शन क्या हुआ, ऑड। और आपको पता था कि अगर -a से a f(x) dx कोई फंक्शन है उसकी इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है अगर वो ऑड फंक्शन होता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं -a से a की प्लस वाली फॉर्म में, जिसमें कोई पॉलिनोमियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, तो आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू चेक वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो ये तो आपको दिख भी रहा है कि ये ऐसा फॉर्म है, लेकिन एक स्पेशल क्वेश्चन है जो बच्चों को नहीं पता लग पाता कि ये ऑड फंक्शन की फॉर्म में होगा या नहीं होगा। जैसे अगर आप एक क्वेश्चन देखें सिंपल और डिस्कस करें कि f माइनस π/4 से प्लस π/4 log 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखने में बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों इतना आसान क्वेश्चन है कि आप देखते ही पता लगा पाओगे क्या है। चलिए क्या है देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारे पास f(x) फंक्शन था, इट इज log 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। चलिए आप f ऑफ माइनस एक्स निकालिए। f ऑफ माइनस एक्स लगा तो क्या आया, देखिए log ऑफ ये आया 1 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब log की प्रॉपर्टीज आपको एक पता होगी कि log a अपॉन b, log a बाई b को आप माइनस log b बाई ए भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं माइनस log, क्योंकि जब इवन और ऑड चेक कर रहे हैं ना बच्चों आप, तो आपको कोशिश करना है कि अगर आपका फंक्शन ओरिजिनल फॉर्म में आएगा तभी वो इवन और चेक हो पाएगा। अभी आप देख रहे हैं 1 प्लस है, क्वेश्चन में 1 माइनस ऊपर था, तो आपको इसलिए ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही चेक करना है कि ये इवन फंक्शन था या ऑड था। तो आप देख लीजिए कि ये f ऑफ जो माइनस एक्स आया था निकल के, ये माइनस f(x) के इक्वल आ गया। ये यानी इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये भी ऑड फंक्शन है। क्या है ये, ऑड फंक्शन, क्योंकि x के प्लेस पर माइनस एक्स रखने से कोई चीज नहीं है। इसका मतलब इसका इंटीग्रल भी क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी से यूज करने हैं, इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी को यूज करें उसके अंदर इन सब बातों का ध्यान रखें। और बता दिया प्रॉपर्टी 3 एंड प्रॉपर्टी 4, इनके लिए बोला जाता है
कि लगभग 90% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, और रेस्ट 10% के लिए आप रेस्ट प्रॉपर्टी के सॉल्व करें। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ही हमारा आज का डेफिनेट इंटीग्रल का सेशन खत्म हो रहा है। सर कोई यही डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड। Thank you, sir. Thanks for the session. ओके सर, थैंक यू।